Hello, everybody. Welcome to another episode of She's Fruitful Podcast. I'm your host, Angela Shakil. I'm very glad, honored, and excited to be right back here for y'all once again. Happy Thursday. Hope you're doing well. I'm also doing great by the grace of God. So, yeah, I am just back, and we are just continuing doing our filming sessions, and I'm so excited what God is just doing. And today we have our another guest speaker. She is my beloved friend. She is my sister in Christ. So I would love to welcome her on our She's Fruitful podcast. But you have to stay connected with us because today's topic is very important and powerful. So without doing any late, let's welcome our sister Rose. Hi, sister Hi, Rose. Angela. How are you doing? I'm good. Thank God. How are you? I'm good, and I'm so excited that finally we are doing podcast together, like in November. Yeah. So Praise God. yeah, sister. So just tell me about you, about yourself, and just and your introduction. I'm Rose Daniel, and I am servant of God, and I have done my bachelor's degree in computer science. I'm serving God through worship and art, and I'm a prophetic artist. That's Yeah, and I just want to mention here that the sister Rose just made very beautiful prophetic, you can say, paintings, and it's very heart touching. And I would love to just, we can share in our description section to so they can see your link, Yeah, we like should. how you make the paintings and all. So today's topic is very powerful, and it's about relationship with the Holy Spirit. Oh, I'm sorry. It's friendship. I'm right. Yeah, it's friendship with Holy Spirit. So you just have to stay connected with us. And I just want to ask you, Sister Rose, that why you have chosen this topic, like friendship with Jesus, and we can say like relationship as well, because the both words matter in this thing. And just tell about this. So my topic is relationship with the With you. Holy Spirit. It came in my heart to discuss about this because this topic is very close to my heart. Like friendship with the Holy Spirit matters the most. Because आजकल की जनरेशन में हम देखते हैं इस टॉपिक की बहुत ज़रूरत है और इसको जानना बहुत ज़रूरी है. तो that's why I selected this topic. वाओ एंड जब आपने मुझे बताया था ना कि वी आर डूइंग अ फ्रेंडशिप विद हॉली स्पिरिट, तो आई वो जस्ट लाइक कि जो पहला थॉट मेरे दिमाग में आया था वो ये था कि हर तरह की हम लोग फ्रेंडशिप्स रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं हर चीज़ों में, इवन दो हर मतलब लाइफ कैसे कोई कॉन्सिक्वेंसेस सर्कमस्टेंसेस पे, लेकिन कभी हम लोग लाइक मैंने नहीं देखा कि एज अ यंग मिनिस्टर जो हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, लाइक रिलेशनशिप विद हॉली स्पिरिट. Yes. So this is very much needed, and finally we are doing today. Yeah, I'm very excited. Yeah, so thank you so much for coming here, and let's move forward and just pray, and then we will jump into our topic. प्यारे बाप, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं इस वक्त के लिए खुदावन. हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन. हमारा मुंह बंद और हम में से होक के बोल ताकि जो तू चाहता है वो तेरे लोगों तक पहुँचे. Holy Spirit, come and fill us and take charge of us. And यस्सु ज़ाहिर हो हम में से, और जो तू चाहता है वो हम बोलें और बड़ा की ताज़ीम हो मसीह यस्सु के नाम से. Amen. 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 So let's jump into our questions, and मैं चाहूँगी कि आप इस टॉपिक के बारे में कुछ एक्सप्लेन करें और डिस्क्राइब करें कि कुछ बातें. फ्रॉम स्टार्टिंग वी सी कि खुदावन की खुशनुदी ही बनी आदम की सोहबत में थी, उसके साथ रहने में थी. दैट्स वाई होली स्पिरिट कम टू लिव इनसाइड ऑफ अस, बिकॉज फ्रॉम द स्टार्ट वी सी जब आदम और हवा खुदा की हजूरी में रहते थे, बट गुनाह के बायस वो खुदा से दूर हो गए थे. और पुराने अहद में भी हम देखते हैं हम उस हजूरी में जाने के लायक ना थे, लेकिन जब यसू ने अपना लहू बहाया तो हम उस पाक तरीन मकाम में जाने के लायक हुए. अब होली स्पिरिट जो है वो हमारे अंदर बसता है, यसू खुद हमारे अंदर रहता है. तो दिस टॉपिक that friendship with the Holy Spirit is very important because Holy Spirit is our friend, our guide, our comforter. He live inside of us. तो अगर हम उसमें देखते हैं दूसरे करंथियों उसका 13वां बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा हुआ है, खुदावन यसु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूल कुदस की शराकत तुम सबके साथ हमेशा रहे. इंग्लिश में लिखा हुआ है फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट. अगर हम इसके लिए
इसके लिए की फ्रेज अगर हम देखते हैं वो है कोइनेनिया। इसका मतलब होता है फेलोशिप, कम्युनियन, इंटीमेट, और रफाकत किसी के साथ रफाकत, पार्टनरशिप ऑफ द होली स्पिरिट। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ग्रीक कॉन्टेक्स्ट में भी हम देखते हैं, इसका मतलब होता है शेयरिंग, पार्टिसिपेशन, यूनिटी, डीप फ्रेंडशिप। मतलब इससे हमें पता चल रहा है कि होली स्पिरिट के साथ फ्रेंडशिप कितनी ज़रूरी है। एंड अगर हम स्पिरिचुअल इंसाइट में देखें इस वर्स को, वो है ग्रेस ऑफ द जीसस, because we are made worthy because of Jesus. Because of Love Jesus, of Father, through Father we are deeply loved. And fellowship of the Holy Spirit, through Holy Spirit हम जो है खुदा का ग्रेस भी एक्सपीरियंस करते हैं, खुदा बाप की मोहब्बत भी एक्सपीरियंस करते हैं। That's it. So this is very important. और अगर as a young believer और while we are doing life in Christ, तो हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि लाइक हम लोग अपने रिलेशनशिप्स दूसरे लोगों के साथ तो बिल्ड कर रहे होते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हम होली स्पिरिट के साथ भी अपना रिलेशनशिप It is बिल्ड very करें। important. Yeah. So can we just move forward? One more thing I want to add कि friendship with the Holy Spirit is walking in unity, walking with Him every day, talking with Him every day, sharing. मतलब जैसे आप किसी अपने दोस्त के साथ बातें शेयर करते हो ना, it is like that. So let's start. और अगर सिस्टर रोज़, अगर हम इस तरह से अपनी फ्रेंडशिप होली स्पिरिट के साथ करें, लाइक हमारी जो रियल लाइफ में फ्रेंड्स होते हैं, हम उनके साथ अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, उनको हम बताते हैं कि आज हमारी लाइफ में ये हुआ, आज हमारा दिन इस तरह से गुजरा। और इसी वे में अगर हम खुदा के साथ कर रहे हो, होली स्पिरिट से इस तरह से बातें कर, किस तरह से वो हमारा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बिल्ड होता जाएगा। ऐसा ही। और कितनी खूबसूरत मतलब बात है कि किस तरह से हम अपने रिलेशनशिप को मतलब बहुत स्ट्रांगली बिल्ड कर सकते हैं होली स्पिरिट के साथ। ऐसा ही है। या सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड वी हैव आवर क्वेश्चंस। और मैं सिस्टर रोज से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी और विच इज़ रिलेटेड टू आवर टॉपिक फ्रेंडशिप विद होली स्पिरिट। और आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ फेलोशिप? अगर मैं फेलोशिप पे बताऊँ तो इट इज़ कम्युनियन, फ्रेंडशिप, डीप फ्रेंडशिप। इसमें हम इंटीमेसी भी आ जाती है अगर हम फेलोशिप को देखें। और अगर हम फेलोशिप का मतलब देखें, पहले हम इंटीमेसी पे देखते हैं। हम जो है खुदा बाप की मोहब्बत जो है ना, वो हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते जब तक होली स्पिरिट हमारे अंदर ना हो। मसीह की मोहब्बत एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, क्योंकि रोमियो 5 बाब में लिखा है कि रूल कुदस जो तुमको बख्शा गया है, उसके वसीला से खुदा बाप की मोहब्बत तुम में डाली गई है। तो होली स्पिरिट का हमारी ज़िंदगी में होना, उसके साथ हमारी रफाकत होना, फेलोशिप होना कितना ही ज़रूरी है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है। तो अब हम फेलोशिप पे देखेंगे। फेलोशिप जो है वो ये होती है कि उसमें कोई रिक्वेस्ट नहीं होती, कोई पिटिशंस नहीं होती। अगर हम प्रेयर और फेलोशिप का कंपैरिजन करें तो प्रेयर में हम रिक्वेस्ट पेश करते हैं खुदा के हुजूर, ऐसा ही है। लेकिन फेलोशिप क्या होता है, हम अपने दोस्तों के साथ भी देख सकते हैं। कोई भी बात होती है हम उनको शेयर कर देते हैं, वो हमारी फेलोशिप होती है। या हम उनके साथ खाना खाने जाते हैं, डिस्कशंस कर रहे होते हैं, खाना खाने जाते हैं, उनसे पूछते हैं। ये रिक्वेस्ट नहीं होती, ये फेलोशिप होती है। रिक्वेस्ट क्या होती है, उसमें होता है कि जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे एक ग्लास पानी पिला दो, कि इट इज़ रिक्वेस्ट। बट इन फेलोशिप इट इज़ लाइक दैट, कैन यू हैव फूड विद मी और कैन वी गो आउटसाइड। इट इज़ लाइक दैट, इट इज़ नॉट रिक्वेस्ट। और एक और क्वेश्चन भी ले सकते हैं, लेट्स हैव डिनर टुगेदर। इट इज़ फेलोशिप। आप उसमें अपना टाइम शेयर करते हो, आपका दिल जो आपके अंदर बात होती है आप वो शेयर करते हो। तो फेलोशिप में कोई रिक्वेस्ट नहीं होती, हमने ये सीखा। और उसमें कोई पिटिशंस नहीं होती, सिंपल लव होता है और अंडरस्टैंडिंग होती है, एफर्ट्स होती हैं। एफर्ट्स होती हैं। चलो, जैसे हमने देखा कि फेलोशिप में कोई रिक्वेस्ट नहीं होती, कोई पिटिशंस नहीं होती जैसे प्रेयर में होती हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि फेलोशिप कितनी पर्सनल है, जैसे हमने उस एग्जाम्पल से भी देखा। तो फेलोशिप विद द होली स्पिरिट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसे हमने उस एग्जाम्पल से सीखा कि फेलोशिप में जो है कोई रिक्वेस्ट नहीं होती, कोई पिटिशंस नहीं होती, जस्ट सिंपल लव होता है, कम्युनियन होती है। और जब हम होली स्पिरिट के साथ फेलोशिप को देखते हैं तो हमें एक बात समझने की ज़रूरत है कि वी कैन गो एज वी आर, लाइक वी आर सिंफुल। और जो भी हमारे अंदर बात है ना, उस साफ दिल के साथ हम होली स्पिरिट के पास जा सकते हैं। ही इज़ नॉट दैट फ्रेंड वो आपको जज करे या आपको धत्कार दे कि मुझसे दूर हो जा, जो कहें कि इस तरह से करो तो इस तरह से होगा, लाइक ही इज़ नॉट लाइक दैट वर्ल्डली थिंग्स। या तो होली स्पिरिट के साथ जो फ्रेंडशिप होती है ना, उसमें जस्ट लव और कम्युनिकेशन होती है, कम्युनियन होती है और प्यार होता है सबसे बढ़ के। तो ये फेलोशिप क्या बन गया, रिलेशनशिप। तो ये बहुत ज़रूरी है होली स्पिरिट के साथ। जब हम इस बात को समझते हैं ना, तो वी गॉट द की
कि हमें उसके साथ हर रोज़ कम्यून करना कितना ज़रूरी है, बिकॉज ही इज़ क्राइस्ट दैट लिव इनसाइड ऑफ अस। जो खुदा है वो खुद हमारे अंदर आके बस किया, तो अब हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, वो हर वक्त हमारे साथ है और हमें हर रोज़ उसके साथ फेलोशिप करने की ज़रूरत है। तो फेलोशिप से हमने क्या सीखा कि उसमें कोई पिटिशंस नहीं होती, कोई रिक्वेस्ट नहीं होती। जैसे किसी हमारा बहन भाई का रिलेशन होता है या बेस्ट फ्रेंड्स का रिलेशन होता है, हमें उनसे डर नहीं लगता कोई भी बात कहते हुए। इट इज़ सेम विद द होली स्पिरिट। वाओ, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कि हम लोग को अपना मेंटेन करना है रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप हॉली स्पिरिट के साथ। बिकॉज होली स्पिरिट इज द वन हु हेल्प्स अस स्पीक टू द फादर इन द नेम ऑफ जीसस। वो बख्शा ही हमें इसलिए गया है कि हमें यस्सु के पास लेके जाए, हमें बाप के पास लेके जाए। और एज अ यंग बिलीवर तो ये दिस इज़ वेरी, यू कैन से मैंडेटरी कि आपको इन चीज़ों के बारे में सीखना है और सुनना भी है। So our next question is, who is Holy Spirit? This is one of my favorite question, or I hope, or I know she will deliver such a great and powerful answer. So, sister, tell us, who is Holy Spirit? To me, Holy Spirit is the loveliest person on earth. उसके जैसा कोई है ही नहीं। एंड अगर होली स्पिरिट को हम बिब्लिकल एस्पेक्ट्स देखें तो होली स्पिरिट is the third person of Trinity. He is person, but he is a third person, but he is not the least. उसकी उतनी इम्पोर्टेंस है जितनी बाप की है, जितनी यसु की है, और उतनी ही रूल कुदस की भी इम्पोर्टेंस है। ये तो हमने देखा कि होली स्पिरिट इज अ पर्सन, बट हु एग्जैक्टली ही इज द स्पिरिट ऑफ गॉड द फादर एंड स्पिरिट ऑफ गॉड द सन। ही इज द पावर ऑफ गॉड हेड, ही इज द पावर ऑफ ट्रिनिटी। और हम देखते हैं कि होली स्पिरिट इज़ द थर्ड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी, बट ही इज़ नॉट द लीस्ट, ही इज़ द स्पिरिट ऑफ गॉड एंड गॉड हिमसेल्फ। और वो जो है हमारा फ्रेंड है, हमारा कंफर्टर है, हमारा एडवोकेट है। मतलब कोई भी सिचुएशन हो ना, होली स्पिरिट हमेशा हमारे साथ है। और इसके एग्जांपल जो है, हम इस बेनी हिन की बुक में मैंने एक एग्जांपल पढ़ी थी, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर हम छोटे बच्चों को देखें, वो कैसे अपने माँ बाप को फॉलो कर रहे होते हैं। उन्होंने उनकी एक टांग पकड़ी होती है या उनके कपड़े पकड़े होते हैं और उनके पीछे पीछे जाते जाते और उनको फॉलो करते हैं। क्यों हमें ये देखने को मिलता है? बिकॉज वो बच्चे अपने माँ बाप से प्यार कर रहे होते हैं और उनको घर पे प्यार मिल रहा होता है, इसलिए वो उनको फॉलो कर करके उनके पीछे चल रहे होते हैं। Exactly. ठीक है, ही वॉन्ट टू स्टे क्लोज टू अस। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप से लिपटा होता है ना, ही वॉन्ट टू स्टे क्लोज टू अस, लाइक अ फ्रेंड, लाइक अ गाइड, लाइक अ कंफर्टर। ही ऑलवेज स्टे क्लोज टू अस। और होली स्पिरिट को अगर हम देखें ना, ही इज़ अ माइटी पर्सन एंड अ चाइल्ड लाइक पर्सन एट द सेम टाइम। अगर हम किसी बच्चे को हर्ट करते हैं तो वो आपसे दूर हो जाएगा, ऐसा ही है। लेकिन अगर हम उसको प्यार करेंगे तो वो क्या करेगा? करीब आएगा, हमारे करीब आएगा। एज इट इज़ विद द होली स्पिरिट, व्हेन वी लव हिम, व्हेन वी स्टे क्लोज टू हिम, व्हेन वी कम्यून विद हिम डेली, हमारा रिलेशनशिप जो है क्लोज होता जाता है। जब हम अपने किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ वक्त गुजारते हैं, आप इसकी एग्जांपल इससे ही ले सकते हो, व्हेन वी स्पेंड टाइम विद अवर वर्ल्डली बेस्ट फ्रेंड्स, तो उसमें क्या होता है, हम उनके साथ रोज़ कम्युनियन करते हैं, उनके घर जाते हैं, उनसे बातें करते हैं। कभी कभी तो वक्त का भी नहीं पता चलता कि क्या वक्त हो गया। एज इट इज़ विद द होली स्पिरिट, व्हेन वी स्पेंड टाइम विद हिम, हमारा रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग होता जाता है कि हमारा दिल नहीं करता कि इससे दूर हो जाए। एग्जैक्टली। एंड और ये हमें पता होना चाहिए कि हु इज़ होली स्पिरिट इन योर लाइफ एंड व्हाट होली स्पिरिट प्लेज रोल इन योर लाइफ स्पेशली। और ना मैं इसमें एक और एग्जांपल भी ऐड करना चाहूँगी। एज होली स्पिरिट इज़ अ पर्सन जस्ट लाइक यू एंड मी। तो इसकी एग्जांपल हम इससे ले सकते हैं, जैसे मैं बैठी हूँ आपके पास, मैं आपसे बात ही ना करूँ तो आपको कैसा फील होगा? मैं हर्ट होंगी, मुझे होगा कि शी इज़ जस्ट शोइंग मी एटीट्यूड लाइक दैट। तो इट इज़ सेम विद द होली स्पिरिट। वो हमारे पास 24/7 है, ही इज़ ओमनी प्रेजेंट। उसकी प्रेजेंस हर वक्त हमारे साथ रहती है और वो एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड, एज अ चाइल्ड कह लो, हमने एग्जाम्पल से सीखा, वो हमेशा हमारे साथ रहता है, वो हमसे दूर नहीं होता। जिस दिन वो हमारे अंदर आया था उसके बाद से वो कभी हमसे जुदा नहीं हुआ। तो जब हम उसके साथ बैठे हैं, सही है, और हम उसी को इग्नोर करें तो उसको कैसा फील होगा? ऑब्वियसली ही गॉट हर्ट, और उसकी फीलिंग्स हर्ट होंगी और फिर वो हमसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। लाइक जैसे हमारे फ्रेंडशिप्स होते हैं, भले आपके स्कूल फ्रेंडशिप्स हैं और हर चीज़ में जो फ्रेंड्स होते हैं, तो वही जैसे कि अगर कोई बात उसको बुरी लगी है एंड देन वो डिस्टेंस मेंटेन करता है, तो इट्स डिपेंड
ऑन अस कि हम लोगों ने किस तरह से होली स्पिरिट के साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड करना और मेंटेन रखना है। और अगर हम पूरा दिन उसको टाइम नहीं देंगे एंड देन वी आर नॉट प्रेइंग और वी आर नॉट स्पेंडिंग टाइम विद हिम, तो ऑब्वियसली वो फिर डिस्टेंस आता जाएगा ऐसे ही। आपकी लाइफ के बीच में। ऐसे हमें दुनियावी रिलेशंस में भी हमारे साथ ऐसे ही होता है। और उसमें हम लोग दुनियावी चीज़ों में भरते जाएंगे। ये नहीं कि हम स्पिरिचुअलिटी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ेंगे, Yeah. वो हम अपनी वर्ल्डली लाइफ और अपनी वर्ल्डली थिंग्स में बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारी लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी शुड हैव टू प्रे एंड वी शुड हैव टू मेंटेन आवर रिलेशनशिप विद द होली स्पिरिट लाइक वेरी कंसिस्टेंटली। कि जो पर्सन जो होता है वो जो रूल कुदस को जानता है ना, उसकी प्रेजेंस को जानता है, वो हमेशा यीशु को ग्लोरीफाई करता है। Yeah. रूल कुदस आया ही हमारे अंदर इसलिए कि यीशु ग्लोरीफाई हो हमारे अंदर से। तो सबसे पहले हमें होली स्पिरिट के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारा उसके साथ रिलेशन हो जाएगा ना, रूल कुदस है ही इसलिए कि वो यीशु को ग्लोरीफाई करे, उसका प्यार जाहिर करे। That's it. Wow, this is very beautiful and important that you have to maintain your relationship with the Holy Spirit. So, our question number 3 is why Holy Spirit wants to be my friend? Okay, this question is very important. कि क्यों Holy Spirit मेरा दोस्त बनना चाहता है? फ्रेंडशिप विद अस जो है वो खुदा के मंसूबा में शुरू से ही थी। अगर हम पुराने अहद में भी देखें और भाग्य अदन में भी देखें तो ये खुदा के प्लान में हमेशा से ही थी। बिकॉज खुदा ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम उसको एक डिस्टेंस से फॉलो करते जाएं। ही क्रिएटेड अस कि हम उससे हर रोज़ बात करें, उसके साथ हर रोज़ रफ़ाकत करें। आदम हवा भी जब उसके हजूरी में रहते थे कि खुदा शाम के टाइम आता था, Yes. ठंडे वक्तों में आता था और वो रफ़ाकत करते थे उसके साथ। फेलोशिप या होती थी। या फेलोशिप आपको पता चला इससे कितनी इम्पोर्टेंट है। तो होली स्पिरिट केम इनटू अस टू बी आवर फ्रेंड, और ये खुदा के प्लान में था कि वो हमारे साथ हमेशा 24/7 फेलोशिप में रहे। अगर हम उसमें देखते हैं इमसाल की किताब उसका 8वां बाब उसकी 31वीं आयत में लिखा है कि उसकी खुशनुदी ही बनी आदम की सोहबत में थी, उनके साथ रहने में थी। तो fellowship has been always the joy of God to be with us, to stay connected with us. और हम देखते हैं पॉल ने भी ये बात कही है। पॉल ने इस डिज़ायर को कंफर्म किया है करंथियों 13 बाब 14वीं आयत, जैसे हमने स्टार्ट में भी देखा था कि फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट बी विद यू ऑल। उर्दू में अगर हम इसको देखते हैं वो है रूल कुदस की रफ़ाकत हमेशा तुम्हारे साथ रहे। तो खुदावन ने हमेशा जो है डिज़ायर की है फ्रेंडशिप ह्यूमैनिटी के साथ। होली स्पिरिट केम टू लिव इन अस सो दैट द फेलोशिप वुड नॉट बी मोमेंटरी, मतलब वो कोई मोमेंट ना रहे थोड़े टाइम का, ये हमने रफ़ाकत की 5 मिनट गुजारे And then आप भूल गए। या हम भूल गए। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ही वांट कंटिन्यूअल पर्सनल और इंटीमेट फ्रेंडशिप विद अस। लाइक एक जैसे हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन हो जाता ना, इट इज़ लाइक दैट that you are just That- loving each other Yeah. 24 hours or like in that way. क्योंकि अगर एक husband और wife है, because marriage is very beautiful, marriage is covenant. Yeah. तो उसमें मेंटेन रखेंगे प्यार, तो तभी वो रिश्ता हमारा आगे बढ़ता है। रिस्पेक्ट, प्यार, और इसी तरह हमारा होली स्पिरिट के साथ होना चाहिए कि यू आर गिविंग टाइम टू हिम, यू आर स्पेंडिंग टाइम विद हिम। तो इसी तरह से हमारा रिलेशनशिप और बढ़ता जाएगा। और एक और चीज़ भी कि ही डिलाइट इन अस, दैट्स वाई उसकी स्पिरिट जो है हमारे अंदर आके रही है, कि वो खुद खुदा हमारे अंदर आके बस किया। ही डिडंट केम टू लिव इन अस और विजिट अस ओकेजनली, वो हमेशा हमारे साथ रफ़ाकत में रहना चाहता है। ये चीज़ हमें सीखने की बहुत ज़रूरत है। और वाई होली स्पिरिट डिज़ायर्स फ्रेंडशिप विद अस, बिकॉज वो यीशु को हम पे रिवील करना चाहता है। ये 5 पॉइंट्स कुछ हम इसमें सीखेंगे, लाइक सिंपल लाइंस। वो यीशु को हम पे रिवील करना चाहता है, और ही वांट्स अस टू एक्सपीरियंस द लव ऑफ गॉड, जस्ट नॉट नो अबाउट हिम। जानना कोई मैटर नहीं करता, उसको एक्सपीरियंस करना कितना ही ज़रूरी है। और जब हम वो एक्सपीरियंस कर देते हैं ना, तो फिर सारी चीज़ें आसान होने लग जाती हैं। हम यीशु का प्यार भी एक्सपीरियंस करते हैं, बाप का प्यार भी एक्सपीरियंस करते हैं, बिकॉज होली स्पिरिट इज़ द वन जो हमें यीशु से मिलाता है, जो हमें बाप से मिलाता है। और वाई होली स्पिरिट डिज़ायर फ्रेंडशिप विद अस, इट इज़ दैट कि ही इज़ आवर कम्फर्टर। हम इंसान हैं, इंसान होते हुए हम गुनाह में भी गिरते हैं, हमारी बहुत सी वीकनेसेस भी होती हैं। रोमियो में लिखा है कि रूल कुदस हमारी कमज़ोरियों में हमारी आहें भर भर के हमारे लिए शिफायत करता है।
तो वो हमारे हार्ड टाइम्स में भी हमारे साथ होता है. ही इज़ आवर कम्फर्टर, ही इज़ आवर हेल्प, ही स्ट्रेंथन अस. तो ये बहुत ज़रूरी है रूल कदस के साथ 24/7 रफ़ाकत में रहना. वो आए इसलिए कि आपको यसु के लायक बनाए और आपकी कमज़ोरियों में आपकी मदद करे. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि बिकॉज गॉड डिलाइट्स इन फेलोशिप विद हिज चिल्ड्रन. तो इसीलिए होली स्पिरिट हमारे अंदर आई. ये 5 पॉइंट हमने इससे सीखे कि वाई होली स्पिरिट वांटेड टू बी आवर फ्रेंड्स. और सिस्टर रोज, हम लोग जैसे कि अपनी दोस्तियां को बहुत ज़्यादा कायम अपना पहला दर्जा देते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं रिलेशनशिप को, इवन दो एट द एंड ऑफ द टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि दे हर्ट अस, और उसमें हमें अगर सिंसियरिटी लॉयल्टी नहीं मिलती तो हम लोग उन चीज़ों को छोड़ देते हैं. और लेकिन होली स्पिरिट तो अपनी फुल सिंसियरिटी और लॉयल्टी के साथ हमारे साथ रहता है, और वो हमारे बिल्कुल अंदर, वो तो हम पे है कि हाउ वी आर जस्ट स्पेंडिंग टाइम विद हिम. और अगर हम टाइम नहीं दे रहे देन ऑब्वियसली डिस्टेंस मेंटेन होता जाएगा. इसके एग्जांपल हम दुनियावी दोस्तियों से भी ले सकते हैं. बिकॉज जैसे हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड होता है, ठीक है, अगर आपकी कोई कम्युनिकेशन नहीं है, लोग इस बात को लेते हैं कि कम्युनिकेशन होना ज़रूरी नहीं है. बिकॉज कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है. अगर आपकी कम्युनिकेशन में गैप आ गया, आपकी दोस्ती में गैप आ गया. इट इज़ सेम विद द होली स्पिरिट. अगर आप उसके साथ रफाकत नहीं कर रहे, आपका रिलेशन नहीं है, आप उसके साथ वक्त नहीं गुजारे, तो वो गैप मेंटेन हो जाता है. बिकॉज ही वॉन्ट्स आवर टाइम. एग्जैक्टली. जस्ट लाइक अ पार्टनर वॉन्ट्स द टाइम. और लाइक द मोर यू जस्ट स्पेंड the time with that person, and that you can say Holy Spirit, तो उस तरह से the more you are strongly building your relationship. ऐसा ही है. तो it's very important that you should have to build your relationship with him because he is your best friend. आप क्यों अपनी बेस्ट फ्रेंड, अपना रिलेशनशिप दुनियावी चीज़ों में ढूंढते हो, देखते हो? आपके पास तो ऑलरेडी बेस्ट फ्रेंड है. एंड होली स्पिरिट वांटेड टू बी योर फ्रेंड एज वेल. वाओ, कितना प्यारी, कितनी मज़े की बात है. और अगर हम लोग लाइक वी बोथ हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग, द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट, और जब वो हमारे ऊपर देन होती है तो देन हमारे को लाइक पता भी नहीं होता कि लाइक वेयर वी आर स्टैंडिंग एंड वेयर वी आर सिटिंग, और वी आर in that place, like जो सब पूरा सिनेरियो होता है जी. तो कितना अमेजिंग वो मोमेंट होता है कि हम खुदा की कुदरत और खुदा की उस हजूरी में कितना अच्छा महसूस कर रहे होते हैं. बिकॉज उसकी मोहब्बत जो है ना, वो दुनिया की जैसी नहीं है. वो हमें छोड़ नहीं देता हमारे हार्ड मोमेंट्स में. लाइक जब हम गिर जाते हैं, गुनाह में गिरते हैं या किसी वीकनेसेस में भी गिरते हैं, और कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लाइक हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, फिर हम उसकी हजूरी को फेस नहीं कर पाते, लेकिन उस वक्त भी वो आपके साथ खड़ा होता है. लाइक जैसे आपका बहुत पक्का दोस्त है, वो आपको छोड़ता नहीं है. इट इज़ लाइक विद द होली स्पिरिट, ही डोंट लीव अस. और when you are just experiencing the presence of the Holy Spirit, तो फिर ऑटोमेटिकली आप दुआ करते हो, you pray in tongues, और उस प्रे इन टंग्स के वसीला से आप खुदा से बातें कर रहे होते हो. और यू आर जस्ट यू नो, मैंने ये बात सीखी अपनी मिंटोर से कि उन्होंने मुझे बताया कि वाइल यू आर जस्ट प्रेइंग इन टंग्स, तो आप अपने फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते हो खुदा से, और उसमें आप अपनी चीज़ें बिल्डअप कर रहे होते हो, अपना रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे होते हो. ऐसे ये होली स्पिरिट जो ना हमारे अंदर से शिफायत कर रहा होता है. वाओ. खुदा बाप के आगे. एंड व्हेन वी प्रे इन टंग्स वी आर टॉकिंग टू गॉड. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके लिए हम एक वर्स भी देख सकते हैं. श्योर. वो है रोमियो 8 उसकी 26वीं आयत. इसी तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर के हमारी शिफायत करता है जिसका बयान नहीं हो सकता. और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्ज़ी के मुआफिक मुकद्दसों की शिफायत करता है. He intercede for us before God. Wow. और ये हमें पता होना चाहिए कि while we are doing life in Christ. So our question number 4 is that how the friends of the Holy Spirit should be. Yes. और ये you know this question is just like very suspense creating कि किस तरह से Holy Spirit का दोस्त हम बन सकते हैं ना. लाइक हाउ वी कैन बी आवर सेल्फ, और किस तरह से हम होली स्पिरिट के फ्रेंड्स बन सकते हैं. So this question is how the friends of the Holy Spirit should be. This question is very important because true friends of the Holy Spirit walks in holiness and purity. Because जहाँ पे Holy Spirit नहीं है ना, there is no holiness. और
होली स्पिरिट इज द की टू होलीनेस. उसके बगैर एज ही इज होली तो वी शुड बी होली. कलाम में लिखा हुआ है कि उसमें लिखा है पहले पतरस उसका एक बाप उसकी 16वीं आयत में लिखा है बी होली एज आई एम होली. और अगर एक और वर्स भी हम लें वो है वाइस की किताब में लिखी हुई है कि तेरी पोशाक सफ़ेद हो और तेरा सर चिकनाहट से खाली ना रहे. तो इससे हम देखते हैं कि बिकॉज होली स्पिरिट हमारे अंदर रहता है ना, तो जो आपका दोस्त होता है आप उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो. दुनियावी दोस्तों में भी हम करेक्टरिस्टिक्स जो है अडेप्ट करते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं हम उनसे चीज़ें एज विद द होली स्पिरिट बिकॉज ही इज़ होली. तो उसके जो दोस्त हैं वो कैसे होने चाहिए, होली और तो बिल्कुल होलीनेस से भरे, प्योरिटी से भरे. और वो हमारी मदद करता है होली बनने में बिकॉज हम नहीं बन सकते खुद से होली और ना हम उस प्योरिटी में चल सकते हैं. होली स्पिरिट इज़ द वन हु हेल्प्स अस इन आवर वीकनेसेस और वो ही हमें होलीनेस में और प्योरिटी में चलने में हमारी मदद करता है. और ये वाली वर्स जो है वो जो हमने वाइस की किताब में देखी उसके 9वें बाप उसकी 8वीं आयत में कि लेट योर गारमेंट ऑलवेज बी वाइट एंड लेट योर हेड लैक नो ऑयल. यहाँ पे वाइट गारमेंट्स जो है ना वो प्योरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अ लाइफ सेट अपार्ट फ्रॉम सिन एंड कॉम्प्रोमाइज़. मतलब आपके लाइफ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो कि आप उसके साथ भी चल रहे हो और आप गुनाह भी करे जा रहे हो. लाइक अ लूकवार्म लाइफ. या इट इज वो दुनियावी तौर पे भी एंड देन और उसके साथ भी चलना. both. तो ये वर्ड थोड़ी सख्ती है लेकिन इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस. और इसमें एक और वर्ड है कि लैक नो ऑयल, ऑयल ऑन द हेड. ये रिप्रेजेंट करता है अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट. जब हम होली स्पिरिट के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं ना तो वो अनॉइंटिंग हमारे अंदर होती है एंड वी कैरी दैट अनॉइंटिंग. और जहाँ जहाँ हम जाते हैं होली स्पिरिट गोज विद अस और वो अनॉइंटिंग हमारे ज़रिए से जाहिर होती है. Because we are just carrying the reflection and the power of the Holy Spirit with us. तो एक पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं कि होलीनेस जो है ना वो कोई परफेक्शन नहीं है, इट्स सेपरेशन ऑन टू गॉड. मतलब उसकी राहें चुनना बजाय दुनिया की राहें चुनने की. इट इज़ लाइक दैट. होलीनेस में अगर होने में हम लोग की बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं इस पार्ट में. लाइक हम लोग उस पर बात नहीं करना चाहेंगे, लाइक वो बहुत लंबा बात हो जाएगी. फिर ज़रूर हम इस बारे में बात करेंगे. लेकिन हम लोग को लाइक प्योरिटी और होलीनेस में रहने के लिए हम लोग की बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ के अंदर जो हमें खुदा से दूर कर रही होती है, होली स्पिरिट से दूर कर रही होती है. तो फिर वो हम अपनी खुद की मर्ज़ी से वो हम डिस्टेंस मेंटेन कर रहे होते हैं. और एक और पॉइंट अगर हम देखें तो प्योरिटी ही है और होलीनेस ही है जो आपको बादशाह के लायक बनाती है. अगर आपके अंदर ये नहीं है ना तो यू लैक सो मच बिकॉज प्योरिटी में मूव करना बहुत ज़रूरी है. एज उसने कलाम में कहा है बी होली एज आई एम होली. और बिल्डिंग अ फायर ऑफ लव फॉर हिम इज़ द ओनली वे टू बीट सिन एंड बैड हैबिट्स. अगर हमारे अंदर उसके लिए मोहब्बत होगी ना तो हम सब कर सकते हैं. और वो होली स्पिरिट ही हमारी हेल्प करता है इस चीज़ में. एग्जैक्टली. जिस पर्सन से हम प्यार करते हैं या हम उसके दोस्त होते हैं तो आप उनकी चीज़ें जो है नोटिस करने लग जाते हो कि वो उसको क्या पसंद है, उसको क्या नहीं पसंद. ऐसा ही है, आप कभी जैसे कोई फ्रेंड होंगे तो आप उनके बिहेवियर्स भी अडेप्ट करते हो, उनकी चीज़ें भी अडेप्ट करते हो. और आपको पता होता है कि जैसे केक्स हैं इसको नहीं पसंद या इसको ऐसे कपड़े पहनना पसंद है, आप उनके बिहेवियर्स अडेप्ट भी करते हो, नोटिस भी करते हो. एंड समटाइम्स यू आर जस्ट अडैप्टिंग देयर वोकैबुलरीज एज वेल. तो to be friends of the Holy Spirit means to value his presence more than the pleasure of the world. उसकी presence को value करना और purity में life गुजारना और filled with the oil. मतलब उस anointing से उस presence में हमेशा fill रहना, उसमें move करना, हर रोज़ उसके साथ वक्त गुजारना और to allow his presence to clothe you with righteousness every day. ये बहुत ज़रूरी है. और सबसे बढ़ के कोई आपका दोस्त होता है तो आप उसको नाराज़ करना पसंद करोगे, कभी भी नहीं करोगे. तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने उसको रंजीदा नहीं करना. डोंट ग्रीव हिम विद सिन बट ऑनर हिम विद सरेंडर. सरेंडर इतना ज़रूरी है. उसको ग्रीव नहीं करना हमने कि हम गुनाह कर करके वापस जाते रहें. और फिर वो क्या होता है, जैसे एक चाइल्ड होता है वो आपसे दूर हो जाता है ना, फिर वो भी दूर. इट इज सेम विद हिम. ये नहीं है कि हमें बिल्कुल छोड़ देता है. अगर हम दोबारा सरेंडर करके उसके पास आते हैं वो हमें एक बाप की तरह कवर कर लेता है.
सो आपको पता है कि आई वॉज इन वन ऑफ द कॉन्फ्रेंस और उधर एक मिनिस्टर था, वो इस बात को बता रहा था कि वाइल वी आर मिनिस्टर्स और वाइल हम लोग जब बिलीवर्स हैं तो वी मस्ट हैव टू बी लाइक प्योर हैंड्स एंड प्योर हार्ट। Yeah. मतलब हर चीज़ में हमारा दिल भी साफ़ होना चाहिए और हमारे हाथ हैं वो भी साफ़ होने चाहिए, और जो हम काम भी कर रहे होते हैं लाइक इन योर डेली लाइफ, तो उसमें हमें अपने माइंड में ये रखना चाहिए कि हमें ऐसी चीज़ करें और उस चीज़ से हम खुदा को अफसुरदा ना करें, उससे खुदा को हम उस वे में नाराज़ ना करें। Yeah. तो हमें अपनी लाइफ में वो चीज़ को और वो हॉलीनेस और प्योरिटी को लेके चलना है कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी खुदा के साथ और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। Yeah, and one more thing I want to add कि फ्रेंड ऑफ द होली स्पिरिट जो है, फ्रेंडशिप जो है होली स्पिरिट के साथ वो कैजुअल नहीं होती, वो एक सेक्रेट जो कंपेनियनशिप होती है जहाँ पे होलीनेस जो होती है वो आपका लाइफस्टाइल बन जाता है, लैंग्वेज ऑफ लव बन जाती है। इट इज़ दैट विद द होली स्पिरिट। वाओ, और ये कितना लाइक सिस्टर रोज़ एंड मी आर डिस्कसिंग ओवर दिस टॉपिक, तो मैं खुद इसको इतना इंजॉय कर रही हूँ और वो प्रेजेंस को फील कर रही हूँ कि वाकई में होली स्पिरिट हमारा एक सच्चा और एक बहुत प्यारा दोस्त है। हम उसको प्यारा दोस्त भी कह सकते हैं, हम उसको सच्चा और ही इज योर बेस्ट फ्रेंड। या तो उसको बस जस्ट आई एम enjoying this thing. So our last question, like question number 5, is that our question number 5 is that why Holy Spirit comes to live inside of you. What's your thought about this? वो हमारे अंदर इसीलिए आया है कि हमें फ्रूटफुल बनाए किंगडम ऑफ गॉड के लिए, हमारी लाइफ को पर्पसफुल बनाए उसके किंगडम के लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो हमारे अंदर इसलिए आया है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आदम और हवा उस हजूरी में रहते थे, लेकिन गुनाह के बाइस वो हजूरी से निकाल दिए गए थे, लेकिन खुदा का दिल इससे खुश ना था, वो रंजीदा हुआ था, वो दुखी था, लेकिन उसने मंसूबा भी बनाया था अपने बेटे को भेजने का। और हम पुराने अहद में देखते हैं तो काहिन बार बार कुर्बानियाँ चढ़ा के खुदा की हजूरी में जाने की कोशिश करते थे, लेकिन वो कुर्बानियाँ इस लायक ना थी कि वो गज़ब को बुझा सकें या वो इस हजूरी में जा पाते। ज़रा सा भी उनमें गुनाह होता था ना, मर जाते थे वो उसी वक्त। और जब यसु ने अपना लहू बहाया तो वो प्रेजेंस जो है 24/7 हमारे अंदर बसती है। होली स्पिरिट जो है वो हमारे अंदर बस गया, वो जलाल जो होली ऑफ होलीज में सुकूनत करता था ना, वो आपके अंदर आके ठहर गया। तो होली स्पिरिट जो है वो हमें जस्ट विजिट नहीं करता, वो हमारे अंदर डिवेल करता है, मतलब हमेशा हमारे साथ रहता है, वो हमें एम्पावर करता है और हमें फ्रूटफुल बनाता है। एज हर पॉडकास्ट इज फ्रूटफुल, तो ही मेक्स अस फ्रूटफुल फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। और सबसे बढ़ के वो हमें यीशु की मानद बनाता है, बिकॉज हम इसलिए नहीं बनाए गए कि हम एम्प्टी रहें, हम इसीलिए बनाए गए हैं to carry God himself inside of us. Holy Spirit is God and he lives inside of us. And we have to filled by his presence. Yeah. और होली स्पिरिट जो है आपके अंदर इसलिए नहीं रहना कि सिर्फ आपको पीसफुल बनाए, वो आपको पर्पसफुल बनाने के लिए आपके अंदर है, टू मेक यू पर्पसफुल फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ किंगडम, टू टेल अदर्स अबाउट क्राइस्ट हिमसेल्फ। वाओ, सो दिस इज़ वेरी मच नीडेड एंड इम्पॉर्टेंट। और अगर हम इसमें एक वर्स ऐड करें, वो लिखी हुई है पहले कुरिन्थियों 12वां बाब उसकी 7वीं आयत, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है। होली स्पिरिट हमारे अंदर इसलिए आया कि हमारे अंदर से यीशु का जलाल ज़ाहिर हो, वो हमारी वीकनेसेस में भी हमारी मदद करता है, हमें स्ट्रेंथन करता है। दिस मीन्स when Holy Spirit lives in you, His presence is not silence, it shows through your life. मतलब अगर हमारे अंदर वीकनेस है तो वो उसमें भी हमारी मदद करेगा, अगर हमें कहीं प्रीचिंग करनी है वो उसमें भी हमारी मदद करेगा। हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है। He didn't come to just make you feel spiritual. He came to make you carrier of God's presence. वो इसलिए आया है कि हम यसु की जो खुदा की हजूरी है उसको कैरी करने वाले बने, उसको लेके जाने वाले बने और दूसरों को भी इसके बारे में बताने वाले बने। और जब वो आपके अंदर आता है ना तो आपका रवैया चेंज हो जाता है। जैसे अच्छे दोस्तों से आपकी रफाकत होती है
तो जब आप उनकी अच्छी चीज़ें अडैप्ट करते हो तो वो आपके अंदर से दिखती हैं। जब होली स्पिरिट आपके अंदर आता है तो आपका बोलने का अंदाज चेंज हो जाता है, आपका करेक्टर चेंज हो जाता है, आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, आपके अंदर यीशु की मोहब्बत आ जाती है जो दूसरे देखते हैं और फिर वो आपको बताते भी हैं और वो एक्सपीरियंस करते हैं आपके अंदर से, और वो आपके अंदर डिफरेंट एक ट्रांसफॉर्मेशन और एक चेंज देख रहे होते हैं। और होली स्पिरिट जो है वो आपकी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में बदल देता है और आपके फेयर को फायर में बदल देता है। पहले जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूंगी, आई वाज सो शाय, मैं प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकती थी, लेकिन व्हेन होली स्पिरिट कम ही टेक कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग और वो आपको मोटिवेट करता है, इंकरेजमेंट देता है। या और जब होली स्पिरिट हमारे साथ होता है तो फिर हम लोग इतना शायनेस और इतना ऐसे फील नहीं करते, लाइक एज योर एग्जांपल। और he came to live in you, so through your life others can feel Jesus, see Jesus और encounter his love, because आप जो है वो चैनल बन जाते हो उसकी प्रेजेंस का। आप बहुत से लोग जो होते हैं वो कलाम नहीं पढ़ते लेकिन वो आपके ज़रिए से यीशु को एक्सपीरियंस करते हैं, बिकॉज जब होली स्पिरिट आपके अंदर आ जाता है तो आपके अंदर से यीशु जाहिर होता है। यू आर जस्ट रिफ्लेक्टिंग क्राइस्ट थ्रू यू, और आपके एक्शंस, आपकी चीज़ें, आपके बोलचाल का मतलब जो सारा तरीका होता है और चाल चलन और हर चीज़ को वो रिफ्लेक्ट बदल जाती है और उस पर रिफ्लेक्ट हो रहा होता है खुदा। बिकॉज एक वर्स में कोट करना चाहूँगी, वो है यू आर द अरोमा ऑफ क्राइस्ट, यू आर द फ्रेग्रेंस ऑफ क्राइस्ट। जब होली स्पिरिट हमारे अंदर आ जाता है तो जहाँ जहाँ हम जाते हैं ना हम यीशु की खुशबू फैलाते हैं। और अगर हम लाइक एज अ फ्रेगनेंस ऑफ क्राइस्ट तो कितना प्यारा है कि वी आर जस्ट, हम लोग बस फ्रेगनेंस खुदा की फैला रहे हैं ऑल अराउंड, लाइक इन आवर कम्युनिटी, लाइक इन आवर फ्रेंडशिप्स, लाइक इन आवर एवरीथिंग। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मच नीडेड। आपको पता है होली स्पिरिट हमारे अंदर इसलिए आया है कि आप ऑर्डिनरी लाइफ ना गुजारो, ही वांट टू मेक यू पर्पसफुल। और व्हेन गॉड द Father live inside of you, so you are purposeful for the kingdom of God. And you are fruitful as well. Yes. And she is fruitful, and you can say they are fruitful because हम लोग इसको limited नहीं रखना चाहते। Yeah. क्योंकि हम चाहते हैं कि इसमें लड़कियां भी देखें और लड़के भी देखें, लाइक वी वांट, एंड एज मैं पर्सनली माई हार्ट इज़ टू जस्ट के इसमें लड़के भी देखें और लड़कियां भी देखें। सो यू गाइज आर फ्रूटफुल, दे आर, यू आर फ्रूटफुल फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। या सो वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चंस। या ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर 5 क्वेश्चंस। और आप बताएं, क्या यू वांट टू शेयर समथिंग इन द एंड? I just want to encourage you all that Holy Spirit lives inside of you. वही presence जो Holy of Holies में रहती थी वो अब आपके अंदर रहती है और you are not alone, you are not forgotten. Holy Spirit lives inside of you and you are deeply loved by God Himself. Wow, so thank you so much, Sister Rose, for coming in our podcast today. Finally, we are making plans to do like since many months. Yeah. But खुदा का यह फजल है और खुदा का शुक्रगुजारी है कि आज हमने finally फिल्म किया, और I am so thankful for you for your precious time. It's always a pleasure to be with you. Thank you so much. Thank you so much for your precious time, and for sure in future I am just looking forward to do more episodes with you. और हम इस बारे में और बातें करेंगे और ज़्यादा part 2 लाएंगे. Amen. Yeah. So thank you so much everybody for just watching us and allowing us to minister you all today. Yeah. And I am just loving my filming week, or I am just loving what God is just doing right now in our community and in my life and in my ministry. So just stay connected with us and be fruitful and just be blessed. So bye bye, take care, God bless you. Bye.